Good morning, girls, and congratulations. I think most of the girls have passed. Very good. So, from today, again we will start reading English. And I think you know the timing of this class. It's from 8 to 9 a.m. Okay? And I would like to tell you slight changes in your syllabus. Your books have been changed and now it's based on NCERT pattern, and the name of the books is Hornbill and Snapshot. That is a prose section and poetry section, whatever it is. One book is for literature and supplementary reader, that is Hornbill and Snapshot, and another book is for your grammar and exercises. And I will request you to buy the books of Raju Prakashan so that it will be convenient for you as well as for me. Okay. So today, though the first chapter is the portrait of a lady, it's a prose, but I will like to read a short poem. Shall I? And that is a photograph. A photograph means एक चित्र. I know that you are thinking why I am choosing a poem. Actually, just you are starting to read these books and it must be light. थोड़ा सा हल्का होना चाहिए ना, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो. सो प्रोज से शुरू करने से बेहतर है, मैंने सोचा why not I should start with a little poem, soothing poem. So the name of the poem is A Photographer, written by Shirley Tolson. आप लोगों के पास बुक्स तो होंगी, मैंने तो पिछले टाइम मई में कह दिया था, आप लोगों ने शायद बुक खरीद ली होगी. तो आपका सेकंड चैप्टर जो है अ फोटोग्राफर, प्लीज उसको निकालिए. The name of the writer is Shirley Tolson. Now, let me read about the poet. The poet Shirley Tolson was a great poetess. एक बहुत बड़ी कवित्री थी, journalist, favorite teacher and editor. She was born on 20th May 1984 in England. Her first book was published in 1960. She would participate in social activities also. Social activities means मतलब सामाजिक कार्यों में भी वो भाग लेती रहती थी. कौन? आपकी poetess. And what was the name of the poetess? Shirley Tolson. Now, let us know about the poem. In this poem, the poetess has told us about human life. इस poem में कवित्री ने हम लोग को मानव जीवन के बारे में कहा है. It is short-lived. Short-lived means अल्पकालिक. श्रोतंबे, अल्पकालिक. Childhood slips into youth. Youth slips into old age. Childhood means हमारा जो बचपन है वो स्लिप करता है किसमें? यूथ, यौवनावस्था की ओर, यंग एज की तरफ. और उसके बाद क्या आता है बच्चों? उसके बाद आता है आपका ओल्ड एज, बुढ़ापा, वृद्धावस्था. यूथ स्लिप्स इनटू ओल्ड एज. तो ये तीन स्टेजेस है लाइफ: चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज. मैन बिकम्स सैड रिमेम्बरिंग द मेमोरीज ऑफ द पास्ट. मनुष्य जो है वो बहुत दुखी हो जाता है जब वो अपने अतीत की स्मृतियों में घूमता है. Now let us read about the poetess mother and find 3 stages of life. आइए हम लोग पढ़ते हैं पोएटिस की माँ के बारे में जो इस कविता में दिया हुआ है. And find 3 stages of life. और जो जीवन के 3 स्टेज होते हैं, स्तर होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानें. First, I am reading the poem. The whole poem is reading. Listen carefully. The cardboard shows me how it was when the 2 girls' cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, big girl, some 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less
washed their terribly transient feet. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed up for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both rive with the labored ease of loss. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. And of the circumstances, there is nothing to say at all. It's silence, silence. So the poem. Now, I'm reading the first stanza. The cardboard shows me how it was. Cardboard, बच्चों आप लोगों को पता है cardboard क्या होता है? A piece of hard paper. गत्ता जिसे बोलते हैं हिंदी में. Cardboard, a piece of hard paper. The cardboard shows me how it was when the two girls' cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. यहाँ पर जो आपकी पोएट्रेस हैं शर्ली टॉल्सन, वो एक फोटो को देख रही हैं एंड दैट पिक्चर वॉज पेस्टेड ऑन अ कार्डबोर्ड. एक कार्डबोर्ड के ऊपर वो चित्र लगा हुआ है. वो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर वो चित्र लगा हुआ है. शोज मी, और वो चित्र मुझे बता रहा है, दिखा रहा है कि ये कैसा था, पास्ट कैसा था, हाउ इट वॉज, वो कैसा था दिन व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग. यहाँ पर पैडलिंग का अर्थ होता है बेटा जैसे किसी पानी के ऊपर छप 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 करके चलना, जो आप पानी में छप छप आते हुए चलना, छप छप की आवाज़ जब हम हाथ से पैर से छप छप करते चल, दैट इज कॉल्ड पैडलिंग. व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब दो कजिन्स मतलब उनकी कजिन्स, एक उनकी मम्मी थी, तीन लोग थे वहां पे, एक उनकी मम्मी और उन मम्मी के दोनों हाथों को पकड़े हुए उनकी दो कजिन्स थे. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. दोनों ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ा हुआ था. एंड शी द बिग गर्ल, और वो जो बड़ी लड़की थी सम 12 years so, हाल मुश्किल से 12 वर्ष की होंगी. And three stood still to smile through their hair. And three stood, और वो जो तीनों लड़कियां थी, वो still एकदम चुपचाप खड़ी थी. To smile, वो स्माइल कर रही थी. Through their hair, अपने बालों से, उनके बाल ऐसे खुले हुए थे, बालों से स्माइल कर रही थी. And the uncle with the camera, एक अंकल सामने खड़े हुए थे, वो कैमरा लेके वो पिक्स ले रहे थे, तो उनको देखकर बालों की ओर से वो मुस्कुरा रही थी. Again I am reading this stanza. The cardboard shows me how it was when the two girls. जब मैं उस पिक्चर की तरफ देखती हूँ, उस फोटो की तरफ देखती हूँ, जो कि एक पीसबोर्ड पर, एक कार्डबोर्ड पर लगा हुआ था. The cardboard shows me how it was when the two girls, कि कैसा दिन था, अतीत के समय की बात करते, कैसा दिन था जब ये दो लड़कियां जो कजिन बहन थी, went paddling, each one holding one of my mother's hand, जो मेरी माँ का दोनों हाथ पकड़े हुए पानी पर छप 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 करके चल रही थी. एंड शी द बिग गर्ल, और वो जो बिग गर्ल थी, वो बिग गर्ल कौन थी, वो पोएट्रेस माँ थी. सम 12 years or so, लगभग ये 12 या इसी तरह से टाइम होगा. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा. उनके सामने एक अंकल पिक्स लेने के लिए, फोटो खींचने के लिए कैमरा लेके खड़े थे. उनको देखकर वो तीनों जो थी वो अपने बालों की ओर से मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी. I think it's clear. A sweet face, my mother's. That was before I was born. अब पोएट्रेस क्या करी कि उसमें जो बहुत प्यारा सा चेहरा था, बहुत स्वीट फेस था, बहुत सुंदर सा चेहरा था, वो किसका था, वो मेरी माँ का चेहरा था, वो मेरी माँ का फेस था. एंड दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और वो कब का था, मेरे जन्म के पहले का था. नाउ यू कैन इमेजिन कि वो कितनी पुरानी पिक रही होगी. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Now here the word transient. Transient means होता है shortly, अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए. And the sea, समुद्र, जिसके पास जहाँ पर खड़े होकर इन लोगों ने फोटो खिंचवाई थी. And the sea, which appears to have changed less, और वो जो समुद्र था जो कि बहुत कम परिवर्तन जिसमें आया था, जो उसमें कम परिवर्तन आया, जो कम बदला था, वो समुद्र वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. उस समुद्र की लहरों ने, उस समुद्र के पानी ने वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट, टेरिबली ने बुरी तरह से, जो अल्पकालिक क्षण भर के लिए तो पैर आए होंगे, वो पूरे समय तो रहना नहीं, तो इसलिए वहां पर
अल्पकालिक, टेम्पररी, द वर्ड टेम्पररी यहाँ पे यूज कर सकते हम लोग. वॉच दैट टेरिबली टेम्पररी फीट, थोड़े समय के लिए, जो अल्पकाल के लिए वहां पे वो पैर आए थे, उसको वह समुद्र धो रही थी जो कि चेंजलेस, परिवर्तनहीन है, जिसमें कि कोई परिवर्तन नहीं होता है. सो रीड इट अगेन. ओके.